नमस्कार सत श्री अकाल जी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਰਿਕੀ ਡੋਗਰਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੰਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਰੈਫਲ ਆਈਸੀਟੀ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਫਲ ਆਈਸੀਟੀ ਤੋਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸੂਰੀ ਸੈਂਟ ਲੁਈਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਿਕਾ ਹਿਲਟਨ, डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हेलो जेसिका, वेलकम टू द शो। Thank you for having me today. I'm excited to be in Chandigarh. एंड आल्सो वेलकम पूजा। थैंक यू। पूजा वैसे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਲ ਆਈਸੀਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ यूएसए ही क्यों। सत श्री अकाल, मैं पूजा रेफल एडुसिटी से। आज हमारे साथ डॉक्टर जेसिका हिल्टन है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के डायरेक्टर हैं एंड शी इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी सेंट लुइस। तो आज का बेसिक जो टॉपिक है वो है डिस्कशन का कि यूएस जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, क्यों बच्चे को यूएस एक ऑप्शन चूज़ करना चाहिए वहाँ जाने के लिए, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो यूएस के लिए एलिजिबल हैं, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज़ मिल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज़ मिल सकते हैं, और वो किस तरह से अपना जो है वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो आज सारा का सारा डिस्कशन जो है इसी के ऊपर रहेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर जेसिका, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट यूनिवर्सिटी एंड इट्स कैंपस। Absolutely. Yes. Thank you for this question. First of all, we're located in St. Louis, Missouri, which is in the heartland of the United States. It's a very affordable and beautiful city, very green and very nice to be for students. And regarding to the university, we are ranked 107 for public universities. Yes. We're Tier 1 research, and we offer programs for every kind of student. So business, STEM, and all of the liberal arts are offered at our university at both the undergraduate and graduate levels. ਪੂਜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਐਸਏ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਏ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯੂਐਸਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ इस यूनिवर्सिटी के बारे क्लियर कर दो कि लोकेशन कितने है और यूनिवर्सिटी है कितने बेसिकली। यस, बेसिकली अभी जैसे कि डॉक्टर हिल्टन ने हमें ब्रीफ आउट करा कि ये हार्ट ऑफ अमेरिका में है, राइट। बहुत ही लाइक स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पे, बहुत ही ग्रीनरी। यूएसए दा सेंट लुइस जेडे स्टेट है, हाँ जी, सेंट मिसूरी स्टेट में है और सेंट लुइस में है ये यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी में वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज हैं, जिस तरह से इन्होंने मेंशन करा कि बिजनेस के कोर्सेज हैं, स्टेम के कोर्सेज हैं। तो ये सारे जितने भी प्रोफाइल्स हैं, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, मतलब आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, इस यूनिवर्सिटी में हर उस बच्चे के लिए ऑप्शन है जिस भी कोर्स के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं। हाँ, जेसिका, व्हाट आल द कोर्सेज यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग? Yeah, we offer many courses, but some of the ones we like to highlight are economics, our business. Yes. Our international business is ranked at the undergraduate level is not ranked number 18 in the United States. We also have a STEM eligible supply chain and analytics course, and data analytics, as well as criminal justice, cybersecurity, and computer science, to name a few. ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਨਟੇਕਸ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ऑलराइट जी ठीक है। अभी जो इंटेक्स हैं वो अगर मैं नियर बाय इंटेक की बात करूं तो वो हमारे पास अगस्त का इंटेक है, उसके बाद जो इंटेक रहेगा वो जैन का इंटेक। जैन इंटेक जब पिछले दी गल करिए तो जैन निकल चुका है, राइट। अगला जो अपकमिंग इंटेक है वो अगस्त इंटेक है जो हमारे पास नियर बाय इंटेक है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। कोर्स केड़े अवेलेबल है ने, राइट। जैसे कोर्स इन्होंने मेंशन करा है, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, स्टेम कैटेगरी के कोर्सेज हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हर उस कैटेगरी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं
जो भी वहाँ पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में प्रोसीड करना चाहते हैं, जो भी एजुकेशन यूएस में जाके लेना चाहते हैं। ऐसा कई कॉलेजेस में हमने देखा है कि आपके पास जो है ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, कई जगह पे सिर्फ डिप्लोमा होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी ऑप्शंस हैं, आपके पास ग्रेजुएट्स के लिए भी ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस हर कैटेगरी में, हर सब्जेक्ट में है और हर बच्चे के लिए हैं। ਜੀ ਪੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਤੇ ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਅਪਕਮਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ एलिजिबिलिटी ਦੀ, ਉਹ +2 ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਜਿਹਨੇ ग्रेजुएशन तो बाद जाना ਉਹਦੇ ਲਈ भी कोई कोर्सेज अवेलेबल है? नहीं, +2 पास आउट जो बच्चा है वो भी जा सकता है, उसके लिए भी स्टेम कैटेगरी के अंडर के कोर्सेज जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। बस बच्चे को प्रोफाइल जो है वो असेस करवानी है, उस अकॉर्डिंग उसे जो है सब्जेक्ट जो भी उसे कोर्स आगे मिलना है वो उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट येस, एलिजिबल हैं। एक बार बच्चे की हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाए कि उसने कितना स्कोर करा है, उसकी लैंग्वेज लाइक आइल्स में कितने बैंड्स हैं, या फिर उसका जो लास्ट उसने कोर्स करा है +2 में उसके कितने स्कोर हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही उसको जो है कितने हैं, मतलब हाँ जी आप कह सकते हैं हाँ जी, और उसका ट्रेड क्या था, तो उस अकॉर्डिंग जो है उसे नेक्स्ट कोर्स जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਐਸਡੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਹੋ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਐਸਡੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। हाँ जी, पूछो जी, क्या पूछना चाहते हो? सर एक्चुअली मुझे स्टेम के बारे में कंफर्म करना था। मेरी प्रोफाइल मैंने बीएससी नॉन मेडिकल करी है 21 में, और मेरे 58 नॉट लेस देन 50 पीटी के स्कोर हैं। 50? हाँ जी, तो मैं एक्चुअली वेबसाइट के थ्रू जा रही थी, तो उसने स्टेम कोर्स के बारे में बताया था, तो मुझे ब्रीफली एक्चुअली जानना था वो होता क्या है। ਪੂਜਾ, ਸਟੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 58 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੇ। क्या पीटी ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ यूएस से? जी, सारी लैंग्वेज एलिजिबिलिटीज़ जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे जो हैं उसके थ्रू जो है बच्चा यूएस अप्लाई कर सकता है। बट अभी मेजरली जैसे हमारे साथ डॉक्टर हिल्टन है, तो वो हमें बताएंगी कि उनकी यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर बच्चा वहाँ जाना चाहता है तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन को ब्रीफ कर देती हूँ इनके साथ, और ये एक बार हमें आंसर प्रोवाइड कर दें। देयर वाज अ कॉलर एंड शी वाज आस्किंग लाइक शी हैव डन हर बीएससी एंड हर पीटी स्कोर इज 59 not less than is it 59? 50. Yeah, 59 not less than 51. So is she available for applying STEM courses in your university? Absolutely. Okay, all right. So इनका Dr. Jessica, what is the eligibility criteria for UG and PG, undergraduate and postgraduate? Oh, the eligibility criteria. So when we're looking at undergraduate or bachelor students, we're looking for a 2.3 GPA minimum equivalent, and then to be eligible for scholarships, though, we need to have a 3.0 at the undergraduate level. We have to have transcripts, their language. We take IELTS, TOEFL, Duolingo, and Pearson. And then we have deadlines that are set. And for graduate students, they have to have a 4-year degree or a 3-year equivalent, a 3.0 GPA, which also makes them automatically eligible for graduate level scholarships. The transcripts, again, TOEFL score, IELTS, Duolingo, or Pearson. And each program has its own requirements that you can find out through our website. ਪੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਔਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ। इस आंसर को मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आपके अंडर ग्रेजुएट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो एलिजिबल हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। आइल्स भी एक्सेप्टेबल है, पीटी भी एक्सेप्टेबल है, आपका डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है। तो ये सारे जो आपके लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हैं, ये सारे जो जितने भी हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी जो है एक्सेप्ट करती है। बट देयर इज़ अ बार, कि वो बार कितना है। इफ़ आई टॉक अबाउट अंडर ग्रेजुएट का बार कितना है, दैट इज़ 5.5 ओवरऑल। और वैसे ही अगर ग्रेजुएट की बात करेंगे तो इट इज़ 6.5। मोर ओवर इनका ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे इन्होंने मेंशन करा है, डिपेंडिंग अपॉन द एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स, कि आपका प्रीवियस हिस्ट्री जो है एजुकेशन की वो किस तरह से है, उस तरह से जो स्कॉलरशिप भी है वो भी बच्चों को प्रोवाइड करी जाएगी। एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू, मतलब प्रोग्राम टू प्रोग्राम ये वेरी भी करेगी। तो इट इज़ समथिंग कि इनके पास काफ़ी सारे लाइक वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो आप अगर अभी सुन रहे हैं 5.5 अंडर ग्रेड्स के लिए, आप
आपको पता है कि आज के टाइम में अगर हम किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो 5.5 जो है एक बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट है, तो एक मिनिमल रिक्वायरमेंट ही है इनकी। इसके अलावा आपका जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे टेस्ट ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ समथिंग कि ये हर उस बच्चे के लिए, हर वो बच्चा अप्लाई कर सकता है इस यूनिवर्सिटी में जो यूएस जाना चाहता है।